You have a, if there's one item that you are testing again and again, supposing for your own for XRF, you have got three samples, three standard samples by which you check the XRF. Now in that XRF, when you check, if you find that the results have started to vary in a particular direction, so you are able to check the trend. Then now the value that I'm getting is increasing. For the same value, for same standard value, I'm getting value every few days, it's increasing. So that is actually monitoring of the trend. In our laboratory, in the otherwise our are saying there is no trend as such. But in our equipment for XRF, there you can see the trend. There also you can see the trend in your balance, because you have standard weights and you use the balance every month or every 15 days or whenever you check, you find that my balance has started showing more weight, and that weight, that increase is increasing, which means there is a trend. So how do we do this? Checking the trend is to be checked by using of reference materials or quality control materials, which means the reference materials for us is for the XRF. The reference material for us in assaying is a CRM, that we cannot check because it is beyond our capacity. Our laboratory is not equipped for checking a gold of 999.9 ppt. But surely we can check the trend of the XRF, we can check the trend of the balance. So these are the alternate. Then the second method is use of alternative instrumentation that has been calibrated to provide traceable results. Now supposing for silver, in gold we don't have any system, but supposing in the case of silver, we find that there's a gravimetric method and there's a volumetric method. And we find that by the volumetric method, the results have started coming down. So which shows that our instrument is now not working. We had checked it and now it's not working, and the results are increasingly, every passing day, the results are becoming small, lesser and lesser. The gap between the value and that was being given earlier and now that is being given is increasing. So by alternate methods, we are able to check. The third is functional checks of measuring and testing equipment, which is our balance. We keep on checking the balance. See, we have a plan, we have a quality control plan by which we check the XRF, we check the balance, we check all the equipment, and we record that. So why do we record? So that a trend is visible. If there is a trend, then that is visible. Now, use of check or working standards in our case is not there. We don't have any working standard by which we check the value of that working standard. That we don't have. Only in the case of balances of intermediate checks. Intermediate checks are the ones we are doing using our standard reference materials or standards, calibrated standards for weighing balance and for XRF. Replicate tests or calibrations using the same or different methods. Now, replicate tests, we are doing, we are supposed to be doing repeat and replicate testing as per our quality plan. So,
Replicate testing is done by us once in a while in the form of ILC. ILC is nothing but replicate testing also. That also can give us, because it's the same thing, the same pieces of the same sample are going. So that is in a way it can be taken as replicate testing also. And replicate testing can also be done within the laboratory. तो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें हमें कोई एक प्रोसीजर बनाना है जिसमें कि हम ये चेक कर सके कि हमारे रिजल्ट जो आ रहे हैं क्या वो वैलिड हैं कि नहीं है, वो रिलायबल है कि नहीं है, उनमें कोई ट्रेंड तो नहीं है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही वस्तु का कुछ दिनों में हम करते जाते हैं तो वो रिजल्ट जो है हमारा ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया, और वो कम ही होता जा रहा है या बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, वो ट्रेंड तो नहीं है। इसको हमें जो जितना भी डेटा होता है उस सारे को रिकॉर्ड इसलिए करते हैं, इस तरह से करते हैं ताकि अगर कोई ट्रेंड है तो हमें नजर आए। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक तो रेफरेंस मटेरियल्स और क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है जैसे XRF है उसको हम चेक करते रहते हैं, हमारे पास कैलिब्रेटेड सैंपल्स हैं उसके साथ चेक करते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद कहीं ऐसा नहीं कि जो हमारे XRF के सैंपल्स हैं वो सैंपल्स की वैल्यू जो है या तो कम दिखानी शुरू कर रहा है या वो ज्यादा दिखानी शुरू कर रहा है, और अगर ज्यादा दिखा रहा है तो समय के साथ वो बढ़ती चली जा रही है, या समय के साथ अगर कम दिखा रहा है तो समय के साथ वो कम होती जा रही है। ऐसा तो नहीं है। और दूसरा जो है कि हमने ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसको हम यूज करें जिसमें ट्रेसेबल रिजल्ट्स हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, मगर हमारे पास कई जगह पे क्या होता है कि जैसे सिल्वर है, सिल्वर में हम ऑल्टरनेट मेथड से चेक कर सकते हैं कि ग्रेविमेट्रिक मेथड से और वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। अगर हमारे पास दोनों मेथड है तो हम दोनों से चेक करके देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़े टाइम के बाद कम वैल्यू दिखाता है और जैसे टाइम बीतता जाता है कम 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 और कम वैल्यू दिखाने शुरू कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो वो ट्रेंड हमें नजर आ जाता है। और फंक्शनल चेक जो करने हैं मेजरिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट के, तो फंक्शनल चेक तो हम करते हैं, बैलेंस का भी करते हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड वेट्स हैं, हमने कैलिब्रेट करा के रखे हुए हैं। XRF का भी चेक करते हैं, XRF के भी हमने कैलिब्रेट करा के सैंपल्स रखे हुए हैं। तो ये तो हम करते हैं और इसको रिकॉर्ड भी करते हैं क्योंकि हमारा क्वालिटी प्लान है, जो उस क्वालिटी प्लान के हिसाब से हम इनको चीजों को चेक भी करते हैं। और जो हमारे कोई वर्किंग स्टैंडर्ड या कंट्रोल चार्ट्स वगैरह वो हमारे लिए है नहीं, तो हमारा जो मेथड है वो हमारा मेथड है, हमारा जो सोने का मेथड है, तो उसके लिए कुछ है नहीं। वो तो हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि हमारी इक्विपमेंट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और इसी इंटरमीडिएट चेक से ही हमें ट्रेंड भी पता चल जाता है। और हम रेप्लिकेट टेस्टिंग या कैलिब्रेशन, तो हमारे कैलिब्रेशन तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो रेप्लिकेट टेस्ट तो है हम करते हैं एक ही आइटम का। हम जैसे हम ILC भी करते हैं तो वो भी एक किस्म से रेप्लिकेट टेस्टिंग ही है क्योंकि उसी मेथड से उसी सैंपल के वही उसी सैंपल में से हिस्से अलग अलग लेबोरेटरीज को देते हैं और वो टेस्ट करते हैं। तो वो एक किस्म से रेप्लिकेट टेस्टिंग ही है। और रिपीट टेस्टिंग भी हम करते हैं, रीटेस्टिंग और रिकैलिब्रेशन ऑफ रिटेन्ड आइटम्स, रीटेस्टिंग भी हम करते हैं। हम हमारे क्वालिटी प्लान में वो ऐसा होता है कि भाई 3 महीने में एक बार ही हम रिपीट टेस्टिंग करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे रिजल्ट जो है बार बार हम चेक करते हैं, तो हम बार बार टेस्ट करते हैं तो कोई वही रिजल्ट आ रहा है या फर्क आ रहा है। तो और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उन सारे रिजल्ट्स को हम कोरिलेट करके देखते हैं। हमारे तो असल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, जहां लेबोरेटरी में जहां टेस्टिंग में कई मेथड है, कई पैरामीटर चेक करने हैं, वहां ये चीज वैलिड है। हमारे में तो एक ही पैरामीटर है, हम उसी का ही देखेंगे। और नेक्स्ट तरीका क्या है? रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स। तो हम लोग तो रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स में हमारा जो टेस्ट मेथड है उसी में ही इनबिल्ट है कि गलत है तो पकड़ने का उसी में ही सिस्टम है, क्योंकि हम डुप्लीकेट टेस्टिंग करते हैं। जो भी सैंपल है उसको 2 पार्ट्स में करते हैं टेस्ट। और इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन, तो हम इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन हमारे में ज्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे आमतौर पे, सब में नहीं कहूंगा, जिन लेबोरेटरीज में एक से ज्यादा असे के लोग हैं वो इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन कर सकते हैं अपना,
मगर हमारे यहाँ पे आमतौर पे एक ही सेट है, एक ही असे के लोग होते हैं जो कर सकते हैं। मगर अगर किसी में ऐसा है कि 3 शिफ्ट में काम करता है और 3 शिफ्ट में सेट आते हैं लोग अलग अलग, तो वो लोग एक ही सैंपल को टेस्टिंग करके वो रिपीट टेस्टिंग भी हो जाएगी और इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन भी हो जाएगा। और फिर टेस्टिंग ऑफ ब्लाइंड सैंपल, तो हमारे तो सारे ही ब्लाइंड सैंपल्स हैं, हमें तो पता ही नहीं होता क्या है ये सैंपल, तो हमारे तो सारे ब्लाइंड सैंपल्स हैं। तो ये असल में अलग अलग लेबोरेटरीज पे कई चीजें वैलिड होंगी, कई चीजों हमारे में नहीं लागू होंगी, क्योंकि हमारी वर्किंग और हमारा जो टेस्टिंग है वो एक ही कैरेक्टर्स, एक ही प्रोडक्ट की एक ही चीज है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी कैन डू रीटेस्टिंग और ऑफ रिटेन्ड आइटम्स in a hallmarking center. We cannot retain the jewelry, but what we can do is that we can retain a part of the sample. We can draw a bigger sample. हम बड़ा sample ले सकते हैं, and then we can keep that sample and give the jeweler, compensate the jeweler by giving the gold from maybe Cornets or something, so that he is compensated, and then that sample we can test later, and that will be, in a way, it can be taken as intra-laboratory comparison also. In a way, it can be taken as replicate testing also. In a way, if we do it again second time immediately, it can be done, it can be said that this is retesting. So I told you, repeat and replicate. This was one difference of terminology that we studied, कि repeat testing और replicate testing, ये हमने बात की थी। रिपीट जो है वो एक के बाद एक हम तुरंत कर जो लेते हैं वो रिपीट टेस्टिंग होती है, और रेप्लिकेट टेस्टिंग होती है जबकि हम एक के बाद एक नहीं करते, हम कुछ समय के बाद या तो कर लेते हैं या उसी मेथड से, उसी तरह की इक्विपमेंट से, उसी तरह के क्वालिफाइड लोगों से किसी और लेबोरेटरी में करा लेते हैं, तो वो भी रेप्लिकेट टेस्टिंग है। तो क्योंकि वो भी रेप्लिकेट टेस्टिंग है, इसलिए आईएलसी भी एक किस्म से हम कह सकते हैं रेप्लिकेट टेस्टिंग हमने की। ये नहीं कहा कि हम रेप्लिकेट टेस्टिंग कर रहे हैं, मगर वो एक किस्म से रेप्लिकेट टेस्टिंग हो गई। तो और फिर हमारे काम में इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन जो है वो हमारे काम में ज्यादा नहीं प्रयोग में होता, क्योंकि हमारी लेबोरेटरी में आमतौर पे एक शिफ्ट नहीं चलता, एक सेट ही है लोगों के। पर हाँ, ये कर सकते हैं कि इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन के लिए एक ही सैंपल में से निकाल लिया और एक इंचार्ज ने कर लिया, एक उसके असिस्टेंट ने कर दिया टेस्ट। सो इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन कैन बी डन even when we have one set of people, because we have an assistant and we have the assay in charge. So both can independently do the testing, and that can be our intra-laboratory comparison if they do the testing from the same melt. The sample that we have drawn and we have melted, and then we take the sample from same. So that is also possible. तो वो भी कर सकते हैं। और review of reported results, तो review में क्या है कि हमारे मेथड तो ऑलरेडी जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है वो उसी में ही रिव्यू इनबिल्ट है। कैसे इनबिल्ट है? पकड़ने के लिए गलती कि हम कहते हैं कि जो हम डुप्लीकेट में टेस्टिंग करते हैं वो 0.5 से ज्यादा, 0.5 पीपीटी से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर 0.5 से ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा तो हम एक किस्म से हमारी वो रिव्यू हो गई टेस्टिंग की हमारी, कि हमारा ठीक चल रहा है। दूसरा हमारा तरीका क्या है, हम उसको दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं? हमारा डेल्टा की जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी हमारे को इंडिकेशन दे देती है, एंड दैट इज आल्सो रिव्यू ऑफ द रिपोर्टर्स रिजल्ट्स, दैट वी आर एबल टू रिव्यू एंड वी आर एबल टू कैच इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। सो और टेस्टिंग ऑफ ब्लाइंड सैंपल्स, ये एक और तरीका है। तो ये जो 5 चीजें नहीं है इसमें, जो पहले नहीं थी, 5 चीजें नई दी हैं, और ये मैंने न्यू लिखा हुआ है जिनके सामने, ये 6 चीजें न्यू हैं और नई हैं, बट इसमें से कुछ हमारे लिए एप्लीकेबल हैं और कुछ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो हम कुछ चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ को नहीं। अब ब्लाइंड टेस्टिंग जो है वो ब्लाइंड सैंपल्स, हमारे तो सारे सैंपल्स ब्लाइंड है, बिकॉज वी डोंट नो, दे आर ऑल ब्लाइंड सैंपल्स। सो नाउ कमिंग टू द वैलिडिटी अगेन, it says laboratory shall monitor its performance by comparison with results of other laboratories where available and appropriate. This monitoring shall be planned and reviewed and shall include but not be limited to either or both of the following: participation in proficiency testing,
and participation in inter-laboratory comparison other than proficiency testing. तो जो हम बात कर रहे थे, एक तो रिपीट रेप्लिकेट टेस्टिंग ये सब, तो एक है कि दूसरी लेबोरेटरीज के साथ भी हमें अपना कंपैरिजन करना है. वी हैव टू कंपेयर द रिजल्ट्स विद अदर लेबोरेटरीज. तो ये इसके लिए हम अभी तक हम लोग हॉलमार्किंग सेंटर्स तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन करते रहे हैं, और ज्यादातर रिफाइनरी की लेबोरेटरीज भी इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन करती रही हैं, क्योंकि पहले फैसिलिटी नहीं थी, पीटी प्रोवाइडर नहीं थे. अब पीटी प्रोवाइडर हो गए, तो NABL जो है वो कहती है कि आप पीटी भी करो. सो NABL इज आल्सो नाउ, बिकॉज देयर आर accredited agencies which are providing the PT service, proficiency testing service. So therefore this is also going to be, now it will soon slowly it will also pick up. तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में एक तो फायदा ये है कि आप अपने रिजल्ट्स को दूसरों के साथ अपने एक कंपैरिजन कर सकते हैं अपने आप ही. और पीटी में पार्टिसिपेट करने से क्या है कि एक आइटम जो है, जो कि एक प्रोवाइडर कर रहा है, जो कंडक्ट करता है, जिसमें कि उसमें ज्यादा भरोसा होता है लोगों को इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन के मुकाबले पीटी प्रोवाइडर की सर्विस से, क्योंकि उस सैंपल को, वो जो सैंपल आता है उसकी एक निश्चित वैल्यू वो फिक्स कर लेते हैं, काफी अच्छी तरह टेस्टिंग करके, पड़ताल करके, आफ्टर दे फिक्स द वैल्यू ऑफ दैट सैंपल. मगर बट इन द केस ऑफ ILC दैट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड इन दैट रिगरस मैनर. वो इतनी जांच पड़ताल से वो वैल्यू नहीं फिक्स होती, तो लेबोरेटरीज आपस में ही कंपेयर करके और रिजल्ट्स जो है वो देख लेते हैं. तो ये ILC में और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में ये अंतर है. दिस इज द डिफरेंस. फिर एक नई रिक्वायरमेंट जो है वो पहले भी थी कि डेटा फ्रॉम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज शैल बी एनालाइज्ड, यूज्ड टू कंट्रोल एंड इफ एप्लीकेबल इंप्रूव द लेबोरेटरीज एक्टिविटीज. If the results of analysis of data from monitoring activities are found to be outside predefined criteria, appropriate action shall be taken to prevent incorrect results from being reported. Now, in this, our method of testing, जो अब ये जो कह रहा है कि जितना भी हमारा डेटा है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, जो हमने अभी तक मॉनिटरिंग एक्टिविटीज देखी हैं, उन सब से हम एनालाइज करेंगे, और उस अगर हम देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उस डेटा से हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई हमारे रिजल्ट बाहर आते हैं क्राइटेरिया से, तो हमें करेक्टिव एक्शन भी लेना होगा, ताकि दोबारा से रिजल्ट्स जो है हमारे गलत ना हो. तो इसमें क्या है कि जब हम इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन करते हैं, सो व्हेनेवर वी डू इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, वी कंपेयर द रिजल्ट्स, वी कैलकुलेट द Z स्कोर. तो हम Z स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं. तो I hope everyone knows how to calculate Z score. Agar if someone does not know how to calculate Z score, then I can tell. Can someone unmute and tell me? Well, sir, there was demand from some of the participants previously that we should go through a calculation of Z score also. Okay. So Z score calculation is not a difficult thing. Z score calculation is very simple. See, when you have participating laboratories, supposing there are 6 participating laboratories, अगर 6 participating laboratories हैं, तो उनके individual results आ गए, you will get their individual results. Then you have to calculate the mean or the average. तो उसका mean या average निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी values आई हैं, हर एक की reported value जो भी आई है, उसको हम जितनी लेबोरेटरीज पार्टिसिपेट करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं नंबर से. सपोजिंग आई गेट वैल्यूज, आई एड अप ईच वैल्यू एंड देन आई डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज. अगर 6 लेबोरेटरीज है तो 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द एवरेज. एवरेज वैल्यू आ गई. अब मैं हर एक की वैल्यू और एवरेज वैल्यू का डिफरेंस देखूंगा, तो वो जो डिफरेंस है वो प्लस और माइनस में आ जाएगा. तो उसको हम कहते हैं एक्स बार जो है वो मीन वैल्यू लेते हैं, एक्स आई जो है उसको कहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू. तो एक्स आई माइनस एक्स बार हम ले लेते हैं. तो एक्स आई अगर बड़ा होगा तो एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव आएगा, एक्स आई अगर छोटा होगा
तो xi माइनस x बार नेगेटिव आएगा। तो ये जो है डिफरेंसेस हर एक के साथ मीन का डिफरेंस जो है हम निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद हम हर एक डिफरेंस को स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे सारे के सारे, क्यों माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, तो वो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस आ गया। अब वो जितने भी स्क्वायर जो आ गया उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। उन सब स्क्वायर्स को जो है हर एक की xi माइनस x बार जो स्क्वायर था उसको हम स्क्वायर करके उन सबको ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर। यानी कि मैंने हर एक का जो एवरेज से जो डिफरेंस था उसका डिफरेंस निकाल के उसको स्क्वायर करके इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इन सबको फिर डिवाइड कर देता हूं जितनी लेबोरेटरीज पार्टिसिपेट हो रही हैं और इसका अंडर रूट ले लेता हूं, तो वो मेरा हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। और z स्कोर के लिए क्या है, z स्कोर क्या है, xi माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बस ये z स्कोर है, सिंपल। सो xi माइनस x बार यानी कि जो मेरा पहले कॉलम में डिफरेंस आया था, मैंने डिफरेंस देखा मीन से, उस मीन का जो डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा z स्कोर आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसकी लिमिटेशन भी बता दीजिए ना। बता दें, ये मेथड कैलकुलेशन आ गया, क्लियर है? किसी को पूछना है Sir, तो बता दो। can you repeat once again? Okay. In English or Hindi? Yeah, English. Okay. See, when there are participating laboratories, supposing there are 6 laboratories participating, and each has reported a value. So individual values are called xi, and the average is called x bar. Now, how to take the average? Add up all the values and divide by the number of participating laboratories. Add up the individual values reported divided by 6 because 6 laboratories were participating. So you will get the average value. Now for each laboratory, you see the difference of the value reported by the laboratory and the average value. So we say xi minus x bar. That means the individual value reported by the laboratory minus the average. So if the average is bigger than the value reported by the laboratory, then this xi minus x bar will be negative. If the value is bigger than x bar, then the value will be positive. Now, when we do this, then one check whether our calculation is okay or not is to add up all xi minus x bar. If you add up xi minus x bar, okay, so that is a check. Anyway, once you have xi minus x bar, then what you will do is v square. Sir, one question, sir. Yes. One question. Yes. Tell me. स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम कैलकुलेट करता है तो जितना ए स्क्वायर का रिजल्ट था सब ए स्क्वायर हम प्लस कर देता, ऐड करता। उसका बाद हम जो डिवाइड करेगा, छोटा लेबोरेटरी होगा तो 5 से डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड करेगा। क्या? सॉरी, छोटा पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी है। हाँ। तो हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा तो हम जो स्क्वायर है जो ऐड किया उसको हम 5 से डिवाइड करेगा या n-1 करेगा ना 6 ही करेगा। आप n करो, n माइनस मत करो, n करो। n करेगा तो n करो। अच्छा, और सर और क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट? माइनस एंड प्लस का लिमिट कितना होगा? क्योंकि मैं माइनस एंड प्लस अगर मेरा -9 आ गया तो सही रिजल्ट अच्छा है। -9 आ गया हमारा। हाँ। या -1 आ गया। मैं बताता हूँ, मैं उसके ऊपर अभी आया नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं बताता हूँ क्या है वो बताता हूँ। अभी मैं उसके आया नहीं, अभी आई एम ओनली टेलिंग द कैलकुलेशन मेथड। ठीक है। सो तो जो xi माइनस x बार आया, हर एक को स्क्वायर करो, तो फिर ये जो स्क्वायर आ गए इन सबको ऐड करो। टेक द स्क्वायर xi माइनस x बार, देन ऐड अप ऑल दीस xi माइनस x बार
divide this by the number of participating laboratories and take the under root. Sir, audio not clear. Hello, is it clear now? Yeah. You take the xi minus x bar square, individual values xi minus x bar, you square them and then add up all these values. Add up all these values and then divide that by the number of participating laboratories and take the under root of this value. So you will get standard deviation. Okay. And then for calculating Z score, you take xi minus x bar upon standard deviation divided by standard deviation and you'll get the Z score. Is it clear? Is it clear now? Is it clear? Sir, you told you have to add all xi. Squares of the differences. Xi minus x bar. Square. Then we are squaring all the value after squaring differences. Yeah. We are adding all the things and divided by number of participant labs. Yes, and then take the under root of that value. Okay, sir. Okay. So, and then you get the standard deviation. And so for getting the individual Z score, you take xi minus x bar of that laboratory, divide by the standard deviation, and you get the Z score for that laboratory. So for each laboratory, you will get a different Z score. Okay. Okay, sir. Right. And to check that your Z score calculation is okay, it's correct. What you do is you add up all the Z scores, and the sum of the Z scores should come to 0. Add up the individual Z scores and the sum should come to 0. Now, you will say that I can get any value of a Z score. When is it that I need to take action? Normally, up to mod 2 is accepted. And if it is beyond mod 2, you have to take corrective action. That something is wrong in your testing. Because your result is significantly different from that of other laboratories. Okay? So mod 2 is plus minus 2, within plus minus 2. It should be within plus minus 2. Okay, that is normally accepted. Is it clear? Does that answer? वो पूछ रहे थे. Someone was asking, what should be the value? Hello? Yeah, it is clear, sir. You please continue. Okay. So, then once we have done this, now we come to reporting of the test results. We've ensured the validity of test results. So now we will report. So reporting of the results, first of all, the result has to be reviewed and authorized prior to release. This is a new requirement. तो रिजल्ट जो है अपना डिक्लेयर करने से पहले, इससे पहले कि हम कस्टमर को रिजल्ट बताएं, उसको किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने जो जानता है उस काम को ही उसको वो रिव्यू करेगा और वो रिलीज करने की अथॉरिटी देगा. ठीक है, अब ये रिजल्ट हम कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इन अवर लेबोरेटरी ऑल्सो, हम अपनी लेबोरेटरी में भी हम क्या करते हैं कि एक आदमी टेस्ट करता है और दूसरा आदमी रिव्यू करता है. तो रिव्यू करके ही रिपोर्ट जो है वो हम देते हैं. रिव्यू के बाद अगर हॉल मार्किंग है तो हॉल मार्किंग इज डन ओनली आफ्टर द रिव्यू, आफ्टर चेकिंग दैट द रिजल्ट इज ओके. सो बेसिकली द रिजल्ट्स शैल बी, ये शैल रिक्वायरमेंट्स हैं. शैल का मतलब कि करना ही है. द रिजल्ट शैल बी प्रोवाइडेड एक्यूरेटली, क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली एंड ऑब्जेक्टिवली, यूजुअली इन अ रिपोर्ट. हर समय रिपोर्ट में, नॉट ऑलवेज इन अ रिपोर्ट, यूजुअली इन अ रिपोर्ट. यानी कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए. ये नहीं कि जिसके दो मतलब निकलते हो. और
ऑब्जेक्टिवली यानी कि प्रमाण से, और आमतौर पे रिपोर्ट में होना चाहिए। और ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमेशा रिपोर्ट में अगर लिखा होता है कि हमेशा रिपोर्ट में ही देना है तो फिर तो हॉलमार्किंग सेंटर के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर रिपोर्ट जो है नहीं देता अलग से, वो जो आइटम को मार्क कर देता है, तो दैट इज ओनली द इंडिकेशन ऑफ द रिपोर्ट दैट इट इज पासिंग। बट व्हेन वी गिव अ रिपोर्ट, पर जब भी हम रिपोर्ट देंगे तो उसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने देनी है। वो एक तो इंफॉर्मेशन वो देनी है जो कि कस्टमर के साथ आप मान गए, भाई कस्टमर ने आपको बोला कि ये मेरा टेस्ट कर दो, ये टेस्ट कर दो, तो वो इंफॉर्मेशन तो देनी है। और कुछ इंफॉर्मेशन अगर कोई मेथड ऑफ टेस्ट जो है वो कहता है कि आप दो, तो वो इंफॉर्मेशन भी देनी है। और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हम जो इशू करेंगे वो सारी की सारी रिपोर्टें जो हैं हमें रखनी है, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर टेक्निकल record. So whatever information that the customer has been with the customer we have agreed, we will provide that information. Apart from that, we will also provide any information which is required for interpretation of the results and all information that is required by the method. Supposing the test method tells you that you have to specify what is the temperature, you will specify the temperature, that this was the temperature at which we tested. In our case, in the case of gold, there is no such condition. The standard does not want us to specify anything. The standard only wants us to specify, to give the value. What is the value of purity? That is all that we are doing. तो हम केवल प्योरिटी की ही देते हैं हमारे स्टैंडर्ड में। कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आपने ये भी रिपोर्ट करना है और वो भी रिपोर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट जितने भी हमारे रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हम अपने टेक्निकल रिकॉर्ड के तौर पे रखेंगे। We have to keep that as our technical record. तो हम जो हमारा टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है उसको कई लोग टेस्ट सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। It can be called test certificate also. Sometimes people call it. और now अभी तक तो हम हार्ड कॉपीज देते हैं, बट it is not necessary to give the report in a hard copy form. अभी आप देखो हार्ड कॉपी देना जरूरी नहीं है, रिपोर्ट जो है आमतौर पे हार्ड कॉपी में देते हैं, मगर अब तो सॉफ्ट कॉपीज का चलन हो गया है। आई वेंट एंड आई गॉट सम टेस्ट डन, फॉर माय ब्लड टेस्ट वर डन एंड आई वाज गिवन अ रिसिप्ट that the report will be available after 5 in the evening. I given the blood in the morning. It's an NABL accredited laboratory. So then they said that, but if you need not come, if you don't want the hard copy, you can see on the website and you can take a print of the hard copy. It will be available after 5 o'clock on the website also. It will be available after 5 o'clock on the website. So I did not go back to get my result because I wanted only the information. And that information I could print. I don't need his original signatures. I don't need the original signatures for the laboratory. So I did not go. So what I'm saying is that now there is a greater reliance on electronic form of reports. People are now relying more on that because it is convenient. Unless and until you want a signed authentic copy for some purposes, normally people are now relying on electronic means. तो आपके जो सेंटर में, हॉलमार्किंग सेंटर में अगर कोई असाइन की रिपोर्ट मांगता है कि मेरे को हॉलमार्किंग नहीं करानी है, ये मेरे को आइटम की असाइन कर दो, और इन द रिफाइनरी, you can submit the reports to the refining department or to the customer, whoever, in electronic form also. You can tell him, you can send by email also. You can have a website where you can put the report and the person can download the report. So you can do all these. तो ये सब चीजें आज की तारीख में कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है वो कहता है कि आप ऐसा ना, मेरे को टेक्निकल ज्यादा मत लिख के देना, आप मेरे को सिंपल फॉर्म में रिपोर्ट दे दो। So sometimes the customer may say that I don't want a very technical report, you give me a report in a simple form. So अगर हम सिंपल फॉर्म में देते हैं, supposing we have to give only in a simple form. Supposing the customer tells you, you don't give me anything, you just tell me
the value. That's all. In that case, we give him the value, but so that it's easy for him to understand. He doesn't want to get into all the other things, method use, this, that, all that. We don't want. But you just give me, that's it. I'm not interested in individual values you got. I'm not interested in anything. I don't want the correlate weight. I don't want all that. You just give me the value. So we can give him the value, but all the information that has to be there in a report should be available with the laboratory. Immediately you should be able to give. तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट कहे कि जी मेरे को आप सिंपल रिपोर्ट दे दो, बस मेरे को वैल्यू बता दो, मेरे को ज्यादा दाएं बाएं की नहीं इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कोई नहीं चाहिए इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी या डेल्टा क्या था या वजन कितना है कोऑर्डिनेट का, मेरे को वो सब नहीं चाहिए. आप मेरे को सिर्फ बता दो कि मेरी वैल्यू क्या है, प्योरिटी क्या है, तो मैं वो बता दूंगा. मगर जो इंफॉर्मेशन जो हम देखने वाले हैं आपकी रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे को रिपोर्ट में होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए. चाहे मैं कस्टमर को नहीं दी, मगर वो इंफॉर्मेशन मेरे रिकॉर्ड में होनी चाहिए. तो क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक तो ये है कि सबसे पहले टाइटल, ये टेस्ट रिपोर्ट है या कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, तो हमारा तो या रिपोर्ट ऑफ सैंपलिंग है, तो हमारे केस में तो टेस्ट रिपोर्ट होती है इन अवर हॉलमार्किंग सेंटर एज वेल एज इन अवर रिफाइनिंग लेबोरेटरीज. इट इज अ टेस्ट रिपोर्ट. नेम एंड एड्रेस ऑफ द लेबोरेटरी, तो वो तो होना ही चाहिए कि किसने जारी की, कौन सी लेबोरेटरी है या कौन सा हॉलमार्किंग सेंटर. लेबोरेटरी जब हम कहते हैं तो हॉलमार्किंग सेंटर भी लेबोरेटरी है. और द लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज, मतलब ये है कि हमने वो अपनी लेबोरेटरी में टेस्टिंग की है कि हमने कस्टमर की फैसिलिटी पे की है या हमने कोई टेम्पररी साइट पे की है या कहीं मोबाइल फैसिलिटी में की है, कहां पे की है वो टेस्ट. हमारे केस में ये भी काम आसान है क्योंकि हमारी तो एक परमानेंट लोकेशन ही है जहां पे हम टेस्टिंग करते हैं. हमारी कोई मोबाइल लेबोरेटरी नहीं है, कोई टेम्पररी साइट्स नहीं है, कोई हमारी दूसरी फैसिलिटी नहीं है. सो फॉर अस इट इज वेरी इजी बिकॉज वी हैव ओनली वन परमानेंट एग्रीमेंट टू द टेस्टिंग. सो we can give the address of that location, which is our own address. Then unique identification that all its components are recognized as a portion of a complete report and clear identification of the end. तो एक हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन देंगे. कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट जो है ना वो एक पेज में नहीं आती, 2, 3, 4 पेज में अलग अलग होते हैं. आपने देखे होंगे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं वो कईयों में कभी कुछ कोई जैसे आप देखोगे अगर ट्रेडमिल टेस्ट का देखोगे उसमें 4-5 पेज में आएगी, या इको टेस्ट देखोगे हार्ट का लोगों का आजकल वो लोगों कराते हैं तो उसमें 4-5 पेज में रिपोर्ट होती है. तो इसलिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये सारे पन्ने जो है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हैं, कौन सी रिपोर्ट के, सो दैट इट इज इजियर टू रिकॉग्नाइज that all these components are basically of the same report. They are part of the same report. And clear identification of the end. और end का clear identification किस लिए होना चाहिए? So that when you get the report, you are sure that this is the complete report, that this is the end of the report. So अभी आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट उठा के देखिए जो भी accredited है, तो उसमें देखो आप ये चीजें आपको मिलेंगी. रिपोर्ट की वैल्यू जो भी है, अगर आप टेस्ट कराते हो, मान लो आपने टेस्ट करा दिया ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर अगर टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट में जहां रिपोर्ट एंड होगी तो एंड ऑफ द रिपोर्ट लिखा होगा या एंड होगा या कुछ इंडिकेशन देगी कि बस ये रिपोर्ट खत्म हो गई. देन द नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर कौन है, ये रिपोर्ट किसको हम दे रहे हैं, किसकी है, सो दैट आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी देयर. वो भी हमें रिपोर्ट में होना चाहिए. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेथड यूज, तो अभी किसी ने सिल्वर की बात की थी मेरे से कि जी ग्रेविमेट्रिक करते हैं वॉल्यूमेट्रिक, तो वो अगर ग्रेविमेट्रिक करते हैं तो हमें ग्रेविमेट्रिक मेथड लिखना है, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक करते हैं तो लिखना है वॉल्यूमेट्रिक मेथड. IS 2113 वॉल्यूमेट्रिक मेथड, IS 2113 ग्रेविमेट्रिक मेथड, वो लिखना है. इन द केस ऑफ गोल्ड
In the case of gold, it is simple because there is only one method, the cupellation method. If you write IS 1418, it means it's the cupellation method. And then a description, unambiguous identification, and when necessary, a condition of the item. So when we get the sample, अभी आप देखते हो report में there is a column in the report which says the form in which the sample was, whether it was a strip, whether it was a jewelry item, whatever, whether it was ingot. So that has to be indicated. Whether it was finished, it was semi-finished, whether it was damaged or whatever. तो जो भी हमारे जिस तरह में फॉर्म में हमारे पास वो आइटम आया या ज्वेलरी आई, ये सैंपल आया, वो हम लिखेंगे. Then date of receipt of the test item and date of sampling where this is critical to the validity and application of results. तो हमारे केस में date of sampling में कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी आइटम ऐसी नहीं है. Our item is not such which will change with time. I can sample it today and I can test it after 10 days. Or I can sample it today and I can test it after 1 year. The value will remain the same. It makes no difference unless and until I mishandle the sample. So हमारे लिए important क्या है कि date of receipt of the test item, किस दिन वो आया, वो हमें देना जरूरी है. और किस दिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो भी हम देते हैं, क्योंकि the date of sampling and date of testing is usually the same. हम लोग जो ज्वेलरी आती है उस ज्वेलरी की हम सैम्पलिंग करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं. दैट इज द सेम डेट. हम लोग हमारी लेबोरेटरीज, in our case, our laboratories do not go and sample outside. We don't go and get the sample. But there are laboratories, for example, environmental laboratories. They go to the factory, they take a sample of the effluent, and then they bring it. There, it is necessary because the COD, BOD can change with time. So, वो sample की validity के लिए it's important. But in our case, our sample does not change with the time, and we do not go out to draw samples. The sample is drawn in the laboratory before testing, or the sample is given to us by the customer. जैसे refining laboratory में तो refining department जो है वो 5 ग्राम gold दे देता है. The refining laboratory receives the gold from the refining department, that as a sample, and then out of that it draws the sample. It does its own sampling within the laboratory for doing the testing. So the dates of performance of laboratory activity, so वो date, the date of testing, that is to be given in the laboratory, which we give in our test report, and the date of issue of the test report. What is the date on which? So 3 dates आएंगी in our case. In the case of our hallmarking laboratory, if they issue a test report, or in the case of a refinery laboratory, when they issue the test report, 3 dates will come. One is when the sample was received or when the jewelry was received. Number 2, when the testing was done. And number 3, when that report has been issued. These 3 dates will come. When the next item to be given is any sampling plans and sampling method used by the laboratory, where these are relevant to the validity or application of the results. तो हमारे results जो हैं, we are doing our sampling in the manner that is given in IS 1418. We don't have to specify because everything is done as per IS 1418. Our sampling plan is given in IS 14820. So our test report that we issue for jewelry, if someone wants a test report, everything is included, that we have followed the plan as per IS 15820. Our testing is as per IS 1418. So everything is specified. In our case, everything is already specified. And then a statement to the effect that the results relate only to the items tested, calibrated or sampled. So our report should always say, and that the results only relate to the item that we have tested. It is understood, but then we have to state this. And the results along with the units of measurement. Units of measurement, right now we are using PPT. But the correct method of unit, the correct unit, which is SI unit, will be gram per kilogram. PPT, parts per thousand,
parts per 1000 is not an SI unit. The SI unit is gram per kilogram. Okay, which is the same value, वही आएगी, but it's a question of writing the unit. Then we must also write in the report, हमें रिपोर्ट में ये भी देना है, अगर हम कोई डिविएशन या एक्सक्लूजन करते हैं मेथड से, वो एडिशन करते हैं, या हम कुछ भी किसी तरह से भी चेंज करते हैं मेथड को, by any method, if we make any change to the method of testing, then we must also indicate that. But in our case, we are not allowed to make any change. हमारा कोई डिविएशन टेस्ट मेथड से अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Then identification of the persons authorizing the report. तो हमारी रिपोर्ट्स के नीचे सिग्नेचर्स होते हैं, टेस्टेड बाय, ऑथराइज्ड बाय, सर्टिफाइड बाय, वो हम रिपोर्ट में लिखते हैं नीचे, वी राइट देयर. सो क्लियर आइडेंटिफिकेशन विद रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर. तो अगर हम कोई बाहर से रिपोर्ट्स का कोई टेस्ट रिजल्ट्स लेते हैं तो उसका हमें इंडिकेशन देना है, मगर हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी में हमारी टेस्टिंग होती है, वी आर नॉट परमिटेड टू गेट टेस्ट डन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स. सो हमारा कोई मतलब ही नहीं है एक्सटर्नल प्रोवाइडर से किसी तरह का भी रिजल्ट आने का. सो वी डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन, कि हमारे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज वी एज अ पॉलिसी वी डू नॉट गेट एनी टेस्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स. एक चीज और है कि जब हम रिपोर्ट इशू करते हैं तो वी मस्ट राइट दैट दिस रिपोर्ट शैल नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट इन फुल विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेबोरेटरी. क्यों? कि ये रिपोर्ट जो है या तो पूरी की पूरी रिप्रोड्यूस करो, इसका हिस्सा कोई नहीं देगा. ये क्यों देते हैं? कोई इस चीज को मिसकोट ना कर सके, इसको कहीं अलग तरीके से ना प्रेजेंट कर सके, इसलिए ये रिपोर्ट का इश्यू देनी है पूरी की पूरी. हमारी तो रिपोर्ट एक वैल्यू की रिपोर्ट है, दैट्स इट. सो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी लेबोरेटरी प्रोवाइड करती है रिपोर्ट में, उसकी जिम्मेवारी लेबोरेटरी की है. लोग पूछते हैं ना कि जी आइटम फेल होती है तो जूलर रिस्पॉन्सिबल है कि हॉलमार्किंग सेंटर आंसरेबल है. तो इसमें यह है कि लेबोरेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट. तो अगर जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सेप्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, हमारे को कस्टमर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो तो डिक्लेयर्ड वैल्यू दे सकता है मैक्सिमम. एट मोस्ट we are given the declared value, but the testing is to be done by us, the testing reports is issued by us, the result is to be given by us, and the customer does not give us any data or anything. So in our case we are responsible, the laboratory is responsible for the results, and therefore it is necessary, इसीलिए जरूरी है कि हॉल मार्किंग सेंटर जो है वो बड़ी अच्छी तरह आइटम को जांच पड़ताल करके ही उसकी टेस्टिंग करे और रिपोर्ट दे. We come across many frauds. I recently there was some kind of a WhatsApp video being circulated where there's a hollow item, there's a kada, and that is broken, and then inside there are steel wires or copper wires. So therefore, and we have known cases where people have given items which were having some other metal inside and the top surface was gold. There have been cases. So therefore it is necessary that the laboratory makes a full proper testing of the item, proper sampling of the item, because if you have an item which is something on the top and something else inside, if you sample only by scraping the top surface, you will not be able to get the proper result, because the sample will not be proper in those cases. So where there is a possibility item जैसे मोटी है, उसमें possibility है कि अंदर कुछ और भी हो सकता है,
और XRF जो है वो चेक नहीं कर सकती, the XRF cannot check beyond say 7 microns. So अगर कोई आइटम है जिसमें कि अंदर कुछ और हो सकता है, तो उस केस में the sample should always be drawn either by drilling or by cutting. कटिंग तो अलाउ करेगा नहीं, जूलर हो गया, मेरी तो आइटम खराब हो जाएगी, तो एक माइक्रो ड्रिल करके और वो ड्रिलिंग को निकाल के ही उसको चाहे XRF पे आप चेक कर लो, so that you are sure that inside also it is the same thing. Because you may not be able to draw a big sample, but what you can do is you can make a micro drill hole, and from that hole whatever drilling comes out, that you can check on the XRF. ये क्या दिखा रही है, जो बाहर ऊपर से उतारा वो और जो अंदर दिखाया वो क्या सेम दिखा रही है? Is it showing the same? The drilling and the scraping from the top, is it the same? So you will be able to know. This is one of the techniques. It's not a standard technique or anything that I'm telling. I'm just telling you that this is just by intuition or by just common sense that I would like to do this. But you people are experienced. You are doing this every day, so you will know many techniques on how to check and make sure that the item that you've been presented is okay and that the report that you're giving is reliable. Okay? और अगर सैंपल जो है कस्टमर देता है, if the sample has been provided by the customer and you have not drawn the sample, then in the report you can say that the report is for the sample as received. जो कस्टमर ने सैंपल दिया है, हो सकता है कस्टमर जो है उसने सैंपल लिया है एक बड़ी आइटम में से. फॉर एग्जांपल इन रिफाइनिंग व्हाट हैपेंस इज it is from a melt. The sample is from a melt. Now you are only testing the sample. You do not know whether that melt was homogeneous or not homogeneous or from which melt he has taken. That only the customer knows. You are only responsible for testing of the sample as received. So you will tell in the report that this result applies to the sample as received. अब वो correlation customer करेगा कि ये इस मेल्ट का या उस मेल्ट का, यू डू नॉट नो. आपको क्या पता वो कौन से मेल्ट का है? आपको तो जो सैंपल दिया गया आपने वो टेस्ट कर दिया. सो दैट इज द रीजन. सो इन एडिशन टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन पहले की थी वो सारी थी सब टेस्ट रिपोर्ट्स, जो टेस्ट रिपोर्ट्स थी और कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स के लिए. पर टेस्ट रिपोर्ट के लिए अलग से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जहां पे जरूरी हो रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए, wherever required for interpretation of the results, information on specific test conditions such as environmental conditions, which is not applicable in our case, where relevant a statement of conformity with requirements or specifications, this can be applicable to us. और ये हमारे लिए है. हॉलमार्किंग सेंटर जो है जब वो हॉलमार्किंग करता है तो दैट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी. तो वो हॉलमार्किंग सेंटर कंफर्म कर रहा है कि ये आइटम जो है ये जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कंफर्म करती है. Where applicable, the measurement uncertainty presented in the same units as that of the measurement or in term relative to the measurement percent versus. तो बेसिकली तीसरी जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट रिपोर्ट में कि आप देंगे अगर एप्लीकेबल हो तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू. So when you want to give a value of uncertainty in your test report, और uncertainty calculate करने का तरीका बता दिया था. हॉलमार्किंग सेंटर में तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर तो रिपोर्ट देता नहीं है. हॉलमार्किंग सेंटर तो सीधा टेस्ट करता है और टेस्ट करके अगर वो सेटिस्फाइड है, दिस आइटम कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स, वो मार्क कर देता है. बट अ रिफाइनरी लैबोरेटरी और इवन अ हॉलमार्किंग सेंटर, इफ इट गेट्स समथिंग फॉर असेइंग एंड इशूइंग अ रिपोर्ट, BIS भी कई बार देती है कि जी आप ये टेस्ट कर दो हमारी आइटम, यू प्लीज टेस्ट दिस आइटम, दिस सैंपल एंड गिव अस अ रिपोर्ट. सो इफ नेसेसरी देन यू मे गिव द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अगर वो एप्लीकेबल है इन द सेम यूनिट. सो बेसिकली हमें जो है अगर जरूरी होता है तो हमें उसका ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन देना कि ये आइटम पास है या फेल है. नहीं तो हमें तो वैल्यू देनी है.
मगर हमारे हॉलमार्किंग सेंटर्स में, बट इन द केस ऑफ अवर हॉलमार्किंग सेंटर, इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी मस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, and our interpretation of the results is pass fail, and if it is pass then we mark the item. So that interpretation is made by us only. The laboratory itself makes the interpretation. In the case of a refinery laboratory, it will only report the value, and it is for the refining department to decide what to do about it. And any additional information that may be required. हमारे केस में तो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन. इन द केस ऑफ गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की तो आवश्यकता होती नहीं है. आई डोंट थिंक वी डू नीड टू गिव दिस. एंड लास्ट रिक्वायरमेंट इज फॉर टेस्टिंग इज वेयर द लेबोरेटरी इज रिस्पांसिबल फॉर सैंपलिंग एक्टिविटी, टेस्ट रिपोर्ट शैल मीट द रिक्वायरमेंट्स जो पहले के हमने आगे आएंगी दोस फॉर इंटरप्रिटेशन. तो हम लोग जो है हम तो सैंपलिंग करते हैं फॉर द ड्रॉइंग अ सैंपल फॉर टेस्टिंग. वी डू नॉट गो एंड डू सैंपलिंग आउटसाइड. हम बाहर से ले सैंपल नहीं लेके आते. और हमारी जो सैंपलिंग की जो एक्टिविटी है वो सैंपलिंग की एक्टिविटी वेल डिफाइंड है कि हमारे पास अगर 40 आइटम होंगी तो आप एक बनाएंगे लॉट, 100 तो होंगी तो हम 2 बनाएंगे, उसमें से ड्रॉ करेंगे, और जो सैंपल ड्रॉ करेंगे, स्क्रैपिंग है तो ऐसे करनी है, कटिंग है तो इतनी करनी है. ऑल दैट इज गिवन. हमारे सारा कुछ दिया हुआ है, हमारे लिए कुछ अलग नहीं है. तो 7.8.4 कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं है. अगर सैंपलिंग, रिपोर्टिंग सैंपलिंग, तो ये जो है ये सैंपलिंग के लिए है, मगर सैंपलिंग हम नहीं करते. हमारी कोई लेबोरेटरी सैंपलिंग नहीं करती. सैंपलिंग अंदर असेइंग के लिए नहीं, बाहर से जाके सैंपल उठाना, आइटम में से किसी में से लेके आना सैंपल. जैसे कि एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज हैं, वो जाके लिक्विड एफ्लुएंट जो है फैक्ट्री का उधर से उठा के लाते हैं. वो ओके. सो ये उनके लिए एप्लीकेबल है. हम तो सिर्फ जो आइटम आती है हमारे पास उसमें से सैंपल ड्रॉ करके हम उसको टेस्ट कर लेते हैं. सो व्हेन वी हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी, जब हमें स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी देनी होती है तो हमें जो डिसीजन है वो हमें डॉक्यूमेंट करना है बेस्ड ऑन द डिसीजन रूल. तो डिसीजन रूल जो है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं बनता. हमारा तो सारा डिसीजन रूल डिसाइडेड है. हमारा डिसीजन रूल जो है वो वेल डिसाइडेड है, स्टैंडर्ड में ही दिया हुआ है. हमारा डिसीजन रूल क्या है कि आइटम जो है अगर पास हम तब मानेंगे अगर उसकी वैल्यू जो है 2 हिस्सों में टेस्ट करेंगे, उन दोनों की एवरेज जो है बिना राउंड अप किए. राउंड ऑफ में राउंड डाउन करना है, राउंड अप नहीं करना. बिना उसको राउंड ऑफ किए अगर हमारी वैल्यू जो है उस वैल्यू से नीचे है तो हम नहीं उसको पास मानेंगे. अगर हमारा 2 वैल्यूज हमने टेस्ट की और दूसरा के 0.5 पीपीटी से ज्यादा का डिफरेंस है, अगर 2 इंडिविजुअल वैल्यूज जो हमने टेस्ट किए हैं तो वो रिजल्ट जो है हमारा वैलिड नहीं है. सो अवर डिसीजन रूल दैट इज देयर इज वेल डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड. So therefore our level of risk, जो हमारा रिस्क का लेवल है वो हमारा रिस्क का लेवल जो है that is taken care of by the standard. IS 1418 या IS 2113 दोनों बताते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज में क्या डिफरेंस हो सकता है और गोल्ड में डेल्टा कितना होना चाहिए when we are testing more than 990 ppt. तो वो सारे हमारा डिसीजन रूल है वो हमारा वेल डिफाइंड है. किसको हमने पास बोलना है, किसको हमने फेल बोलना है, क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि हम रिजल्ट पे रिलाई कर सकते हैं. आवर डिसीजन रूल इज क्लियर. सो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी देंगे, whenever we give a statement of conformity, for us life is simple.
because every report that we give pertains to one particular sample in the refinery. In the laboratories which are in the refineries, every report, every sample is given a separate report. So there is no ambiguity on which sample this particular report applies to. Then specification. तो हम तो IS 1417 compliance जो है वो है, या IS 15820 का compliance है, कि वो स्टैंडर्ड तो हमारा क्लियर है कि जो हमने पीपीटी वैल्यू दी है, whether that meets the requirements or not. And decision rule हमें देने की जरूरत नहीं है. We don't need to give a decision rule because the decision rule is well defined in our standard. Then coming to basically the reporting opinions and interpretations, it slowly becomes important to start giving this. One second, there's some chats also. We'll take a look later on the chats. So, when any opinion or interpretation pass or fail or anything is to be given, अगर हमें रिपोर्ट में या हमें ओपिनियन देना है ये रिपोर्ट पास है या फेल है, तो कौन देगा? जो लोगों को अथॉरिटी है इस काम की. People who are authorized are the ones who will make that interpretation. So NABL has a system of an authorized signatory. Now, authorized signatory is the person who, according to the work that is being done and according to the competence requirements, he is the one who is basically eligible to provide this. And whenever you have to give an opinion or interpretation, the laboratory has to document the basis on which this opinion and interpretation have been based. So, हमारे केस में तो हमारा opinion and interpretation is based on the requirements of the standard. It is clear. When an item is passed, when it is failed, when we have to do a retest, it is very clear. So for us, the life is much easier than in other laboratories where you do not have these kind of standards, where so much detail is given. जब हम opinion या इंटरप्रिटेशन जो हम रिपोर्ट में देते हैं वो अगर रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है तो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है. सो व्हेन द ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस एक्सप्रेस्ड इन रिपोर्ट्स शैल बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्टिंग और कैलिब्रेटेड आइटम्स एंड शैल बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज सच. नाउ द पॉइंट इज कि हम तो जो भी ओपिनियन या जो भी इंटरप्रिटेशन देते हैं वो तो हम टेस्टिंग के बेसिस पे ही देते हैं ना, तो हम अपने रिजल्ट्स के बेसिस पे ही देते हैं. वी गिव द इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, बेस्ड ऑन द टेस्टिंग दैट हैज बीन डन. सो it is in our case there is nothing other than that. There is no other third factor. That's it. Our testing and our report, and whatever we have received, on that basis we are giving that interpretation or opinion. Supposing you give this opinion or interpretation verbally, ऐसे कोई circumstances आ सकती हैं कि आपको कस्टमर बोले कि मेरे को verbally बता दो, but then even if you give that interpretation verbally, तो वो जो भी आप verbally बात करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना है. That you must make sure that you keep a record. अब हमने रिपोर्ट इशू कर दी. Now that we have issued the report, there could be circumstances when we issue the report and for some reason a change is required. If a change is to be made, maybe in our report that we issued we wrote something wrong. So the sample was in the form of a ingot and by mistake we wrote strip.
So we will have to make that correction in the report. So अगर हम रिपोर्ट में कोई चेंज करते हैं for some reason and we issue a fresh report or a changed report or amended report, then it has to be necessarily be very clear. ये जरूरी है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि हमने क्यों वो बदला और क्या बदला, और जब हम रिपोर्ट दोबारा इशू करते हैं, अगर उसी गलती को सुधार के दोबारा इशू करते हैं, एक्चुअली उस गलती सुधार के दोबारा ही करनी पड़ेगी, एक बार रिटर्न रिपोर्ट दे दी तो उसको तो दोबारा ही एक नई रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हमें उसके अंदर लिखना है कि अमेंडेड रिपोर्ट या चेंज रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट है सो एंड सो। तो वो बताने के लिए कि ये जो अमेंडेड रिपोर्ट, ये कौन सी रिपोर्ट को है, किसको सुपरसीड करती है। कई बार लिख देते हैं दिस अमेंडेड रिपोर्ट सुपरसीड सो एंड सो। तो पुरानी रिपोर्ट जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी वो कौन सी है, जिसको की हमने चेंज करके रिपोर्ट दी है। ओके, अब रिपोर्ट भी इशू हो गई। अगर कोई, हमने ये भी देख लिया, वी हैव आल्सो सीन दैट इन केस ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस you may have to amend the report, you may have to issue a fresh new report, or you may have to issue an amended report. Now it can also so happen, even after all this, there can be a complaint. So the laboratory shall have a documented process. ये पहली रिक्वायरमेंट है जहां पे एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। अभी तक हमने जितना भी देखा कहीं पे भी नहीं था ना डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर कहीं शब्द नहीं था। ये पहला है, सिर्फ यही है जो कि एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंटेड, स्टैंडर्ड नहीं कहता कि होना चाहिए जरूरी, पर वो हमारे काम के लिए जरूरी होगा, टू सो दैट फॉर कंसिस्टेंट ऑपरेशन वी विल हैव। बट as per the standard, this is the procedure which has to be documented, and that is to receive, evaluate and make decisions on complaints. ये क्यों documented? Why should this procedure be documented? So that this description of the handling process for complaints shall be available to any interested party on request. कोई भी अगर हमें रिक्वेस्ट करता है, ये इसलिए documented चाहिए ताकि कोई भी हमें रिक्वेस्ट करे तो हम उसको दे सकें। So, ये प्रोसेस क्या है? What is the process for complaints? कंप्लेंट्स का प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है और हर जगह यही है कि जब भी कोई कंप्लेंट आए, सबसे पहले लैबोरेटरी देखेगी कि वो उसके कंप्लेंट उसके लिए है या उसको पर्टेन नहीं करती, उसके बारे में नहीं है। अगर उसके बारे में है, अगर उसके काम के बारे में है या उसके लोगों के बारे में है या उसके किसी भी तरह से उसके साथ रिलेटेड है, तो वो उसको डील करेगी। और वो डील करेगी और सबसे पहले तो उसको जो है एक्नॉलेज करेगी कि ये कंप्लेंट आ गई, उसको एक्नॉलेज करना है। और उसके बाद देखना है हमारे काम के बारे में, हमारी आइटम के बारे में, हमारे स्टाफ के बारे में, कि हमारे बारे में जो भी है, अगर हमारे बारे में है किसी भी तरह से, तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या है कि उसको हमने लेके एक्नॉलेज कर दिया, वैलिडेट करने के बाद कि यहां हमारे बारे में है, फिर उसकी ट्रैकिंग करनी है और उस पर क्या एक्शन लेने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एक्शन डिसाइड करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक कंप्लेंट में हमारी गलती हो, मगर हो सकता है कोई ऐसी कंप्लेंट भी हो सकती है जिसमें हमारी गलती हो। तो हमें कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, कंप्लेंट को चेक करने के लिए, we have to gather and verify all necessary information to validate the complaint. अब कई बार क्या होता है ना कि आप कहते हो कि जी आइटम मेरी फेल आ गई, ये जीता जागता केस है कि आइटम मेरी फेल हो गई और ये जो आइटम है, जूलर बोलता है भाई तुम्हारी आइटम जो है फेल हो गई। तो आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आप कहते हो, जूलर नहीं कहता, बाहर का कस्टमर कहता है जिसने किसी जूलर से लिया कि ये आपकी हॉलमार्क आइटम फेल हो गई है, तो
या BIS से आ जाता है कि आपकी हॉलमार्क आइटम फेल हो गई है, तो उस केस में सबसे पहले आप चेक करेंगे मैं इस ज्वेलर की हॉलमार्किंग करता भी हूं कि नहीं करता हूं. सो यू कैन इवन चैलेंज दैट ये तो मैंने किया ही नहीं, तो सबसे पहले देखो कि इसमें मेरा मार्क है भी या किसी और का है, who has done it. So you will basically gather and verify the information to validate the complaint. और वैलिडेट करके जब आपने कर दिया तो आप उसको जो भी आप प्रोग्रेस करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसकी प्रोग्रेस उसको बताएं. अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी प्रोग्रेस बताएंगे. मान लो आप बोलते हैं जी हमने BIS को बोल दिया रीटेस्ट करने के लिए, वो फेलियर जो उन्होंने रिपोर्ट किया था तो हमने BIS को बोल दिया रीटेस्ट करने के लिए. तो अब वो रीटेस्टिंग महीने में होगी या 2 दिन में होगी या 10 दिन में होगी या 2 महीने में होगी, वो आपके हाथ में नहीं है. तो आपको कंप्लेनेंट को बताना है कि देखिए कि अभी 1 महीना हो गया मगर हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे सकते. सो व्हेन फाइनली यू रिजॉल्व द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट आपने रिजॉल्व कर ली जब भी की, तो उसके बाद उसको उसका जो नतीजा निकला उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन का, वो कंप्लेनेंट को बताना है. और जो नतीजा हम बताएंगे वो भी जो है वो लोग रिव्यू करेंगे लेबोरेटरी में, जो कि ओरिजिनल के साथ जो थे वो एसोसिएटेड नहीं थे. अब हमारी लेबोरेटरी तो छोटी है, हमारी लेबोरेटरी में तो कंप्लेंट्स जो है वो, अगर लेबोरेटरी के काम के बारे में कंप्लेंट है, अगर हॉलमार्किंग की कंप्लेंट है या हमारे काम की कंप्लेंट है, जैसे टेस्टिंग की कंप्लेंट है, रिजल्ट्स की कंप्लेंट है, सो दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स basically it's very simple, but you do the retesting. Supposing the person wants to do a retesting, आपके पास सही के लिए आया, आपने रिपोर्ट दी, तो वो कंप्लेनेंट कहता है देखो आपने जो मेरे को रिपोर्ट दी, this report is different from the report that I've got from other laboratories. So what will you do? You will say, all right, you give us the same sample again, we will test it again. Now when you do the retesting of that item, when this says that people who were involved in the original complaint, people in the subject, will not be associated for reviewing and approving of the outcome of the complaint. The outcome or to be communicated to the complainant shall be made or by or reviewed and approved by individuals not involved in the original laboratory activities in question. मगर हमारे केस में तो वही लोग होंगे, is the same set of people, because we are very small set. So what you do is that complaint sample that we have to retest or we have to give an opinion on, that will be masked and it will not be known to the laboratory inside or assigned people that this is a complaint sample of the same item which you had tested earlier. तो वो हम impartiality maintain कर लें. Okay, so we have to maintain impartiality of the operations. तो complaint जो है वो actually एक independent review होना चाहिए. So people who were associated with the subject of the complaint, they should not make a decision. They should not make an approval of the decision. Okay, they can do the testing and then the decision can be taken by the CEO, because the CEO was not involved earlier. It can be reviewed by the CEO. So the work can be done by the same set of people of investigating the complaint without knowing that this is a complaint sample. And then after that, the review and decision making can be done by a CEO, because CEO is normally not associated with the day-to-day activities. And then finally, if it is not an anonymous complaint, then the end of the complaint handling process with the outcome has to be intimated to the complainant. तो complainant को जब हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लेंट का खत्म हो जाएगा, कि देखिए जी हमने आपसे कंप्लेंट ली, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसका ये रिजल्ट आया और अब जो है हम आपकी कंप्लेंट तो क्लोज कर रहे हैं. So this is as far as the end of the complaint process is concerned. मगर ये प्रोसेस एंड यहां नहीं हो जाता, क्योंकि अगर उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन, supposing in that complaint investigation we come across a situation
which requires us to take corrective actions, then those corrective actions have to be taken. तो हमें वो corrective action लेने हैं ताकि ये किस्म से कंप्लेंट जो है हमारे पास एक फीडबैक आ गया कि हमारा काम जो था इस काम में थोड़ी गलती थी. So we will have to take corrective actions in those cases. Next है, अभी कंप्लेंट भी होगी, सब कुछ हो गया. अभी कई बार क्या होता है, sometimes it so happens that when you are working you make mistakes. तो जो नॉन परफॉर्मिंग वर्क है, नॉन परफॉर्मिंग वर्क फेलिंग आइटम नहीं है. फेलिंग आइटम इज अ नॉन परफॉर्मिंग आइटम. इट इज नॉट नॉन परफॉर्मिंग वर्क. आपका वर्क क्या है? आपका वर्क है टेस्टिंग. नॉन परफॉर्मिंग वर्क मीन्स एनी नॉन परफॉर्मिंग टेस्टिंग. कौन सा? कि अगर आप टेस्टिंग करते हैं और वो टेस्टिंग जो है इट इज नॉट एज पर द प्रोसीजर्स, it is not as per IS 1418, then that is non-conforming testing, non-conforming work. So you must have a procedure for control of non-conforming work. ये पहले भी रिक्वायरमेंट थी. तो ये प्रोसीजर होना चाहिए. Standard does not say it has to be documented, but आपके पास already documented procedure है. So you can continue with that, क्योंकि इसमें नई requirement नहीं है कोई. तो in a non-conforming work situation, the authority and the responsibility for managing that non-conforming work have to be defined. कि कौन responsible होगा इस procedure के लिए, कौन अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी है कि वो काम को रोक सके. You know, supposing it is non-conforming work, what happens is you find that when you are testing your results are not okay and you require to investigate. Then you will have to stop work till you think that you are able to get proper reports, proper results. So someone will have to maybe stop the work. नहीं, काम अभी रोक दो, हम ठीक से टेस्टिंग करके चेक करके और फिर हम अपना काम शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, you may find that in an inter-laboratory comparison your results are very different from others. Your Z score is very high. Then there's a risk to your results. So immediately you will say no, first we will stop work, reevaluate, we will do ILC again and then we will start working if it is okay. Till such time it is okay, we will not do work. So actions based on risk levels have to be established by the laboratory. कि भाई काम रोक दूंगा, will I stop that work, or I will do repeat testing, and or I will withhold the test reports. So for example, I do checking on my XRF preliminary check, and suddenly I find that my XRF is not checking iridium ruthenium. It's not checking. So what will I do? Whatever reports, whatever testing has been done already, whatever screening on the XRF has been done already, and testing has been done, I will not mark that item. I will say, hold on, let me first get my XRF recalibrated, rechecked, re-verified by the supplier. If it starts giving proper results, then I will check all these items once again and then then allow hallmarking and then give it to the customer. तो मैं जब भी मेरे पास कोई नॉन परफॉर्मिंग वर्क होगा, वो जिस कारण से है उस कारण को ढूंढ के I will look for that item, what is the reason, and then I will take action as per the impact that can have on my work, and then only I will go ahead. Okay, so
I will have to make an evaluation of the significance of the non-conforming work, including impact analysis on the previous reports. अब मेरे को आज पता चला कि XRF मेरा जो है वो इरिडियम रुथेनियम नहीं दिखा रहा, और जब मैंने चेक किया था 10 दिन पहले तब तो दिखा रहा था। तो जो पिछले 10 दिन में रिपोर्ट्स गई हैं, जो पिछले 10 दिन में मेरा मटेरियल गया है हॉलमार्क होके, हो सकता है, it is possible in the last 10 days whatever material I've sent, it's possible that some of them may have had iridium ruthenium, but my XRF was not checking, I'm not sure. Sometimes it can happen that the work is non-conforming because there was something wrong. मेरा मान लो furnace जो है, furnace I found on checking that my furnace display of the temperature is 10 degrees more than what the temperature is actually there. So now this is also, I have decided that I will fix at 1070. Now when it is showing 1070, it's actually 1060. Then I will evaluate whether this can have any effect on my work or not. तो अगर तो इसका असर नहीं पड़ रहा है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, तो then there is no problem. But जैसे वो मान लो XRF का जैसे केस था, इरिडियम रुथेनियम नहीं दिखा रहा था. So in that case, what will you do? You will tell the customer, you please send back that all that items that we hallmarked within the last 10 days, whatever customers you there, so that we can recheck them. अगर हम इसी सिचुएशन में, जैसे कि मान लो मेरा फर्नेस खराब हो गई है, so if the furnace is stopped, what I will do, I will then stop my work, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं क्यूमुलेशन नहीं कर सकता हूं, so I cannot work. Then someone has the authority to stop the work, and someone, that same person or someone else, can be given the authority to resume the work, दोबारा शुरू करने के लिए, जब मेरी कंडीशन ठीक हो जाए. तो वो अथॉरिटी भी आपको डिफाइन करनी है कि कौन जो है काम को रोकने में आदेश देगा और कौन जो है काम को शुरू करने का आदेश देगा. So whenever any non-conforming work was done, जब भी कभी ऐसे non-conforming work हुआ, उस non-conforming work का हम रिकॉर्ड रखेंगे और क्या एक्शन लिया था वो रखेंगे. So when the laboratory has some non-conforming work, it shall retain record and also the action that was taken. And when it is seen that this non-conformity can occur again, or if there is a doubt about the conformity of the laboratory's operations with its own management system, the laboratory has to implement corrective actions. यानी कि मैं evaluate करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा जो नॉन कंफॉर्मिंग वर्क है ये दोबारा भी हो सकता है, मेरी XRF जो है दोबारा भी खराब हो सकती है, देनी वैल्यूज कोई डिटेक्शन बंद कर दे पता ही नहीं चलेगा. तो मेरे को ऐसी स्थिति में, या जब मेरे को शक हो कि मेरे ऑपरेशन जो हैं, मेरे जो मैंने सोच के किया था मैनेजमेंट सिस्टम उसके हिसाब से नहीं है, तो इस स्थिति में मेरे को क्या करना है, इस स्थिति में मेरे को जो है अपने करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं. मैंने बताया था ना कि 3 शब्द होते हैं, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन. करेक्शन वो है कि मेरी गलती जो हो गई मैंने गलती को सुधार दिया. करेक्शन इज मेकिंग अ करेक्शन ऑफ द एरर. करेक्टिव एक्शन इज identifying the root cause because of which that error occurred and removing the root cause. तो करेक्टिव एक्शन क्या होती है कि मेरे को ढूंढना है कि वो वजह क्या थी जिसकी वजह से ये गलती हुई, और उस गलती की वजह को हटाना, उस गलती की वजह को सुधार करना, उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन.
और प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? गलती होने से पहले जिस वजह से गलती हो सकती है, गलती हुई नहीं, जिस वजह से मेरी गलतियां हो सकती हैं, उन वजहों को हटाना, वो हो जाएगा प्रिवेंटिव एक्शन। सो the causes, the root causes because of which there is a possibility of a non-conforming work, removing that is called preventive action before the non-conformity occurs. So अब मैंने सारा कुछ कर लिया. I have from the review to testing to checking the validity of results to calculating the uncertainty, मैंने and issuing a report, handling complaints, everything I've done. तो मैंने अभी क्या किया, जब से मेरे पास सैंपल आया, वो सैंपल का रिसीव करना, सैंपल की रिक्वेस्ट को चेक करना, सैंपल को टेस्ट करना, उसकी रिपोर्ट जारी करना, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है वो करना, उसकी अनसर्टेनिटी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका कोई कंप्लेंट आती है उसको हैंडल करना, किस तरह की रिपोर्ट देनी है वो करना, मैंने सब कुछ कर लिया. अब क्या है कि अब जितना भी मैंने ये काम किया है इसका मेरे पास प्रमाण होना चाहिए. सो व्हाटएवर वर्क वी हैव डन, दैट हैज टू बी एक्चुअली डन इन अ मैनर where that demonstrate the manner in which the work was done. So well sir, हाँ, it's already 6:03. ठीक है, then we will stop here and we will continue from 7:11 tomorrow. 7:11 is, I think, the last clause of clause 7. Clause 7. If you want me to stop, then I can stop here and we can start tomorrow. Otherwise I can do this if you want, and then we continue with clause 8 tomorrow. Whichever. I think we shall complete 7:11. Okay. So first requirement is control of data and information management. तो control of data and information management यानी कि जो है हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारा डेटा है उसको हमने कंट्रोल करना है. कैसे कंट्रोल करना है कि फर्स्ट थिंग इज दैट द लेबोरेटरी शैल हैव एक्सेस टू द डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म लेबोरेटरी एक्टिविटीज. तो लेबोरेटरी को जो है उसके पास वो डेटा और इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए लेबोरेटरी का काम करने के लिए वो उसके पास होना चाहिए. दूसरा क्या है कि लेबोरेटरी का जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, वो जो है ऐसा हो कि हमारा जो भी जितना भी डेटा है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम के लिए जरूरी है वो उसको हम वैलिडेट कर सकें कि हाँ हमारे पास ये जो है इंफॉर्मेशन ये सही है. जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को कि हमारे CRM, हमारे जो CRM है उनकी वैल्यू या SRM है, हम उनकी वैल्यूज जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, या जो हमारे XRM वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह है वो कौन सा है, कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर है, या वो ठीक है कि नहीं है. हमारे को तो सप्लायर ही देता है तो सप्लायर का ही डेटा और सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं. डेटा जो है हमारे पास कहां से आ जाता है, NABL accredited लेबोरेटरी से ही हम टेस्टिंग कराते हैं. तो ये जो है हमारी सिस्टम है वैलिडेट करने का कि हमारे पास जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ है जिसको कि हम यूज करते हैं, जिसको आधार मान के हम अपनी टेस्टिंग करते हैं, वो whatever we use as a basis for our testing, that is reliable. So that is all. तो हम जो है रिलायबिलिटी हमारी होनी चाहिए और वो सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. तो ये हमारे पास एविडेंस रहता है. वी हैव दिस एविडेंस इन आवर वर्किंग लाइक वर्च्यू ऑफ आवर वर्किंग बाय वर्च्यू ऑफ द होल. सो number 1, the laboratory management system information management to be such that it protects from unauthorized access. जो मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो मेरा डेटा है वो दूसरों के पास ना चला जाए,
मेरे क्लाइंट्स की जैसी इंफॉर्मेशन है कि कौन कितने पीसेस दे रहा है, क्या टाइम है, तो जिस व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है उसके पास नहीं जानी चाहिए. It should be protected from unauthorized access. Secondly, it should be safeguarded against tampering and loss. Tampering and loss से safeguard क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स जब हम टैंपर करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको टैंपरिंग बोलते हैं. मतलब हमने उसको गड़बड़ कर दिया और जो गुम गया रिकॉर्ड, तो हमारा एविडेंस जो है, काम करने का एविडेंस, वो चला जाता है. तो हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं और हमारा जो डेटा है और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हमने इस तरह से रखना है so that it is not possible to change it without authorization and so that we do not lose that information. गुम नहीं जानी चाहिए, निकल नहीं जानी चाहिए और गुम नहीं जानी चाहिए. दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में हमने जो एक्सएफ की या बैलेंस रूम की एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह हैं, वो डेटा है, तो ये सारा हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. ये नहीं कि बाद में कोई उसको ऑल्टर कर दे. ठीक है, और उसको हमने संभाल के रखना है प्रॉपरली. जितनी भी हमारा डेटा है, जितना भी हमारा जो हमने काम किया या जो हमारे पास सैंपल्स आए, जो भी सारा डेटा, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी रहे, यानी कि वो डेटा के ऊपर हम हमेशा रिलाय कर सकें, कोई चेंज कोई ना कर सके. कई बार क्या होता है कि जैसे अब हम कैमरा का भी हम करते हैं. कैमरास में किसी ने डिस्क की फॉर्मेट कर दी, तो हम भी रिकॉर्डिंग गई. तो जब ऐसा कुछ चेंज हो, अनऑथराइज चेंज हो या सिस्टम का फेलियर हो जाए, तो हमें इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना है. तो जब भी गलती होती है, ये पल्ले चीज बांध लो, जब भी गलती होती है हमें 2 एक्शन लेने होते हैं. वी हैव टू टेक 2 एक्शंस व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम. नंबर 1, यू हैव टू डू अ करेक्शन, गलती को सुधारना है. और नंबर 2, हमें करेक्टिव एक्शन लेना है. दैट वी हैव टू इंश्योर दैट this problem does not occur again. Okay? हमारा लेबोरेटरी का जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, that is maintained by the laboratory inside the laboratory. There is no external provider or any offsite work. तो हमारे लिए 7.11.4 जो है ये एप्लीकेबल नहीं है. Because we are in the laboratory, we are maintaining the system on the site. It is neither offsite nor it is by an external provider. So we can just simply write this, that we are maintaining ourselves. There is no external provider. This is not applicable. Okay. And जो laboratory ensure करेगी कि जितनी भी instructions हैं, manuals हैं, reference data है, regarding the laboratory information management system, टेस्टिंग का तो डेटा है ही, वो तो अवेलेबल है ही. रिगार्डिंग द लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज रेडिली अवेलेबल टू पर्सन. वो जिसको भी आवश्यकता हो काम के लिए, वो उसके पास उसको मिल जाए. जैसे कि हमने कल चेक किया था कि जो सीआरएम है गोल्ड, अनसर्टेनिटी वैल्यू में हमने गोल्ड की भी जो चेक, प्रूफ गोल्ड की अनसर्टेनिटी वैल्यू जो है वो भी हमने कंसिडर की थी. सो जिसको कभी है अनसर्टेनिटी वैल्यू कैलकुलेट अपने काम की, उसके पास वो डेटा होना जरूरी है. So information should be maintained in such a way so that information is readily available to the people who need it. फिर लास्टली जो रिक्वायरमेंट है कि लोग जो है कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा ट्रांसफर, तो वो जो है वो चेक करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो ना कि मैंने एक जगह तो लिखा था 5.678 और लिखते समय मैंने जब रफ में 5.678 लिखा था और जब मैंने फेयर में लिखा तो उसमें मैंने 5.768 कर दिया.
तो इस तरह की गलती भी हो सकती है. So someone, when you are transcribing information, when you are making a transfer of data or information from one place to another, तो एक उसकी चेकिंग जरूरी है ताकि मेरी गलतियां इस कारण से ना हो, so that I do not make mistakes on this account. Okay, so tomorrow we will do management system. This is the end of the process department. So tomorrow we will do the management system. Okay.